Okay, folks, today is, I believe, 31st of January. I'm going to Port Credit. I'm going to Port Credit to make some videos over there. One of the gentlemen, Little Buddy, he commented that I should go to Oakville, and then he said, no, don't come to Oakville, at least go to Port Credit and make some videos from the lakeshore. So I'm heading towards that. It's a very, very bright sunny morning. Looks very nice while you're sitting in a warm and cozy car, have a coffee in your hand. But if you walk, you are in trouble, unless you are properly bundled. Let me see how much is what's the temperature right now. So again, the day started with -21 and now it is -18. So it's heading towards the trend of a little bit warmer gradually until by next Wednesday it's going to be +6 with rain and then snow and all that. This is a cycle. It goes in January and February, on and off. Go up, down, go up, down. Sometime in plunge, and sometime we have record hot day sometime. Once in a while, once in a blue moon. So anyhow, so I'm heading towards Port Credit. I'll see what are the options for me to make some videos, at least for the lake. Definitely is going to be a fun. Since it is not far from me, maybe about 15 minutes drive where I live. So let me continue on in Urdu now, in Hindi. So anyhow folks, मैं जा रहा हूँ पोर्ट क्रेडिट की तरफ. इट्स लेक शोर है मिसागा का, और क्या नाम है, मैंने सुना था कि लेक की जो साइड्स हैं वो जम गई हैं. तो एक मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे रिकमेंड किया था कि भाई पोर्ट क्रेडिट की जाके, हिज नेम इज लिटिल बडी. सो थैंक यू लिटिल बडी, गिविंग मी नाइस सजेशंस एंड नाइस वेन्यूज टू लुक अराउंड. बट एनी हाउ, तो लेट मी कंटिन्यू इन उर्दू. तो मैं जा रहा हूँ पोर्ट क्रेडिट की तरफ, और मैं ड्राइव करके देखूंगा कि किस पार्ट से enter. I know which spots you can go to the lake. There are few spots. Port Credit का जो वहाँ पर ईस्ट वेस्ट ऑफ हाईवे 10 है, वहाँ से भी रास्ता जाता है, और लेफ्ट से भी डिफरेंट स्ट्रीट्स है. लेकिन आई नीड टू पिक अप द राइट स्पॉट जहाँ पर मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम आई कैन गेट द मैक्सिमम बेनिफिट्स. सो लेट्स सी हाउ माई जर्नी एंड्स अप. ये राइट साइड पे 3 दिन पहले तक कंस्ट्रक्शन हो रही थी, लेकिन मेरा ख्याल है कि -18 में इन लोगों की भी हिम्मत जवाब दे गई. आज कोई भी काम नहीं कर रहा है. हो सकता है मेरी वीडियो इतनी साफ ना बन रही हो, क्योंकि सामने से सूरज की ग्लेयर पड़ रही है, और ओह माय गॉड, there's a little bit snow on the side. एक्चुअली नज़र नहीं आता है. और स्नो जो है, जब वो आज तो खैर विंडी नहीं है, कल बहुत विंडी था, उसकी वजह से सारी जो ये साइड की अभी तक पाउडर थी, अब तो ये जम चुकी है. जमने से मुराद ये है, इट इज़ सॉलिड लाइक अ रॉक एट दिस टाइम. इट्स वेरी हार्ड टू मूव दैट. लेकिन ये राइट साइड पे एक प्रेजेंटेशन सेंटर था. यहाँ पर नए कांडोज आ रहे हैं H1 H2 के नाम से. अगर इफ somebody is interested, give me a call, 647-290-9776. I'm a licensed realtor from City of Toronto. I'm in a Toronto real estate board, working with the Cityscape Real Estate. तो ये बड़ा ही टोरंटो का, आई मीन मिसागा का कह सकते हैं कि बात से बात निकलती है. तो one of the most wanted areas you can say in Mississauga, because vicinity and proximity to Square One. अगर कोई इंटरेस्टेड होता है तो दे कैन गिव मी अ कॉल अगेन, 647-290-9776. तो मैंने आज से सोचा था कि आई मेक वीडियोस. तो बेसिकली मेरी जो वीडियो का स्टाइल था, शुरू में था, इरादा मेरा यही था कि मैं टोरंटो, मिसिसागा, ब्रैम्पटन,
बर्लिंगटन, हैमिल्टन की जो मेजर प्राइम लोकेशंस हैं उनकी लोगों को ना सिर्फ जानकारी दूं और बताऊं कि थ्रू माय वीडियोस दे कैन कम टू नो which area is expensive, which area is affordable, both residential more and commercial also. Since I have a background of restaurants for 35 years, I know I won't claim 100% because nobody is 100%. I can say that I know all A to Z, when to buy, where to buy, how to buy restaurants, particularly fast foods. I have no knowledge about all ethnic and all that. I know a little bit Indian, Pakistani, but mostly fast food, American, Canadian restaurants. So I did almost, I would say in Chicago and here, almost over 25 restaurants, buy and sell at different time over the span of 32 to 35 years. So I can help people. If somebody is interested, they can give me a call. I can at least give them a right direction and the right guidance. Doesn't matter you go with me or not, but at least I feel my moral duty or some kind of responsibility. What I have learned, I can pass on to the next generation. Somebody gave me all that knowledge, and some I learned through my experience. So anyhow, this is another very major intersection for Mississauga, which is called Dundas and Ontario. I had mentioned in last of my videos. तो यहाँ पर क्या नाम है, फाइन डाइन की तो इतनी कोई ख़ास जगह नहीं है, लेकिन यहाँ पर डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ some parking issues भी होते हैं, it could be a very good spot for takeouts and deliveries and stuff. Delivery is sometimes very hard in this area because on the rush hour sometimes you cannot pull your car out. You cannot make a delivery in the faster pace what you want. राइट साइड पे प्लाजा बहुत बिजी प्लाजा है, ये राइट साइड पे अनदर प्लाजा इज़ वेरी बिजी प्लाजा, फ्रेशको है, उसमें फूड बेसिक है. यहाँ पर आपको आई वॉन्ट से चीप बट अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग मिल जाएगी. ये मोस्टली बिल्डिंग जो लेफ़्ट साइड पे ये सारी जो है रेंटल्स की है. ये राइट साइड पे भी रेंटल बिल्डिंग्स हैं, ये लेफ़्ट साइड पे भी रेंटल बिल्डिंग्स हैं. आगे फिर 2247, I still remember the address of Ontario, I believe. Yeah, 2247 Ontario. There's a big building, and I will say that still people are living on a very affordable rates. जिन्होंने पहले कभी रेंट किया था तो they are still living on a very affordable rates. But still $1,500-$1,600 में I believe. Don't quote me. Still. ये लेफ्ट साइड की जो है ये ह्यूज बिल्डिंग है, 2247, 22 I believe 35, something like that. ये राइट साइड पे यहाँ पर आगे जाके ब्रॉन्टी कॉलेज आ जाएगा, और यहाँ पर कुछ बिल्डिंग्स हैं. लेफ्ट साइड पे ये शरोबी का इलाका आ जाता है. शरोबी पे कैनेफ वालों की बिल्डिंग्स हैं. या 2200 शरोबी. So these are mostly rentals. The beauty for this place is everything is in a very close access. Right side पेट्रोलियम हॉस्पिटल गुजर गया. ये राइट साइड पे सारा जो है ये ब्रांटी कॉलेज है. यहाँ पर फॉरेन स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा आते हैं, particularly I have seen students from India and China. तो ये जो है यहाँ से हैमिल्टन को ही एग्जिट चली जाती है. QW जो हमेशा स्टक रहती है, and still is stuck. You can see from here, bumper to bumper, always bumper to bumper. Something is always going on, either an accident or sometimes volume or whatever. Man, it's bad. I never required anybody. So this QW becomes a Gardner on left side, और ये मर्ज हो जाती है 403 पे जाके आगे. Anyhow, it's always a bad. So I always like to track 403, which is a little bit better than this. Yeah, agar if you can afford 407, which is a very expensive toll road. तो यहाँ तक तो जो एरिया था पीछे का
वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा नया इलाका, इस सेंस में नया से नया तो नहीं कहेंगे इसको, स्टिल 60s में बन गया होगा, लेकिन ये अब जो है ये ओल्ड मिसिसागा यहाँ से शुरू हो जाता है, वेरी वेरी ओल्ड, some are very expensive buildings because the lots are very very big, पर्टिकुलरली मिनियोला वगैरह पे 2-2 मिलियन 3-3 मिलियन के बड़े बड़े लॉट्स में बड़े बड़े मकान बने हुए हैं, and it's to me very scary the night when I go there because there is no light and big trees, लेकिन समर में it gives a very nice feeling कि फ्रंट यार्ड इतने बड़े बड़े हैं कि I cannot explain। अच्छा जी, तो ये राइट साइड पे टोरंटो पे जा रही है, इधर से you can see the sign I believe, and the left side से उस तरफ जा रही है टोरंटो, I mean जो उधर से incoming traffic है they can take an exit from there। तो ये है the good thing about this UW or this part is the south service road और north service road इसके पैरेलल चल रही हैं सर्विस रोड्स, तो अक्सर जब रश बहुत ज़्यादा बम्पर टू बम्पर होता है तो यू कैन यूज़ दैट साउथ सर्विस, बट इट गोज़ ऑल द वे टू कौथरा आई बिलीव, उसके बाद फिर वो ख़त्म हो जाती है। तो अब यहाँ से तो इतना नज़र नहीं आएगा, लेकिन इसके अंदर अगर मैं कभी लेके जाऊँ आप लोगों को तो यू विल बी सरप्राइज, पर्टिकुलरली ऑन द राइट साइड देयर आर बिग हाउसेस, बिग हाउसेस। इस तरह ये पुराना मकान तोड़ के ये 1484 रेंटारियो इन्होंने पुराना तोड़ के बड़े बड़े मेंशन में, ये लॉट्स पुराने ज़माने में कभी बहुत बड़े रहे होंगे। मुझे पता है कि मेरी विंडो और मेरी विंडशील्ड वॉशर भी ख़त्म हो चुका है, कल का ख़त्म हुआ है, and I am pretty sure you're not having a nice, let me try to clean it a little bit। These are big lots, particularly this coming street मिनियोला, इसमें जो आगे जाके जो पुराने तोड़ के नए मकान जो बने हैं, those are really piece of arts। सामने से हाई स्पीड गो ट्रेन जो है ये, वाह बड़ा छोटी सी थी, ये बेसिकली गो ट्रेन का ट्रैक है जहाँ से डाउनटाउन रोलिंगटन से आगे गो ट्रेन जो जाती है वहाँ तक यूनियन स्टेशन तक, ये उसका है। देखिए गो स्टेशन का यहाँ गो का साइन भी नज़र आ गया। मोस्टली लोग जो है यहाँ आते हैं, गाड़ी पार्क करते हैं और डाउनटाउन चले जाते हैं। Okay, this is a Port Credit area. Welcome to Port Credit. Very very old historical area कह सकते हैं इसको। जिस तरह स्ट्रीट्स हिल है, पोर्ट क्रेडिट है, तो अब मुझे देखना ये होगा कि मैं कैसे जाऊं। फ्रंट पे जाके मुझे सिर्फ लेक का वो करना है, तो देयर आर सर्टेन स्पॉट्स जहाँ से मैं जा सकता हूँ। लेट मी ट्राई पोर्ट क्रेडिट फर्स्ट, जो इनका हार्बर वगैरह जहाँ समर में बड़े बड़े फेस्टिवल्स होते हैं, बड़े बड़े फेस्टिवल से मुराद तो नहीं कह सकते, लेकिन देयर इज ऑलवेज सम एक्टिविटीज आर गोइंग ऑन ओवर देयर इन द समर। अच्छा, मैं सीधा भी जा सकता हूँ आई बिलीव सो, लेकिन चूंकि मैं ओनली की लाइन में हूँ तो आई कैन नॉट डू दैट, सो आई हैव टू बी राइट, आई एम नॉट गोना होल्ड द ट्रैफिक इन द बैक। लेकिन मैं आगे से मुड़ के ओह शिट, about to hit me. I was making on the left lane, but the guy was coming in a very high speed, so that was my fault. Anyhow, so let's see. ये लेक शोर का बहुत ही पुराना इनके मकानों दुकानों के उससे अंदाजा लगा लें कि एलिज़ाबेथ स्ट्रीट जो पुराना मिसाग
का पोर्ट क्रेडिट का मेन टावर जो है आप देख सकते हैं अभी भी, जो पुराने शहरों का एक पूरी हार्बर जो है यहाँ पर जमी हुई है। माय गॉड, ऑन द लेफ्ट साइड। तो ये आप देख सकते हैं ये टावर जो बना हुआ है। तो लेट मी गो फ्रॉम हियर एंड सी, probably see what I can do. कॉफ़ी भी, स्टारबक्स भी है, and I might get a coffee first before I go. Okay folks, मैं यहाँ पर स्टारबक्स से कॉफ़ी लेता हूँ, उसके बाद जब मैं मेन हार्बर पे आऊँगा तो मैं उसकी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, अगर कुछ बन पाई, अदरवाइज माफ़ कर दीजिएगा। Okay, like I always request, please subscribe my video.